discuss parliamentary committee, and it's a part of our polity series that we have been discussing. So the question arises, what is parliamentary committee and what is the need of this parliamentary committee? Why is this parliamentary committee formed? So we know that parliament is the biggest forum of debate, and all the major discussions and debate takes place in parliament regarding any bill that comes into the parliament. We also know the condition of our parliamentarian, that how intellectual they are, and that is why a group of people are required who can cater to the needs of these parliamentarians, who can aid them in discussion and discharge of their duties. That is why this parliamentary committees are formed. And first we'll see that what we are going to discuss, what are the index. First we will discuss the meaning of parliamentary committee, and then we'll go into the classifications, that how they are classified, whether it's permanent committee or temporary committee, okay, standing or ad hoc committee, and there are different types of standing and ad hoc committees. Then we will go on to discuss what are different financial committees, kitne financial committees hain, and then we will see what are different financial estimate committee. We will see in detail the each and every committee, and it is very important part of the examination. Questions are coming both in prelims and mains regarding this committees and its working. Also we should know the general functioning, how it aids in the parliamentary procedures. And then we have committee of inquiry, on inquiry is there, that is to inquire on any matter, petition, privileges, and election committee. Then committee to scrutinize and control. Scrutiny means critical examination of something. We have government assurances, committee on subordinate legislation, paper laid on the table, welfare of SC/ST and women, joint committee on office of profit. Then we have committee related to day-to-day business of the house. So we have different day-to-day business of the house. So different committees are formed to taking into consideration the different business of the house. And then housekeeping committees are also there. Housekeeping committee का काम क्या होता है कि day-to-day functioning of the house, या to take care of the needs of the different members. So some committees are there, जैसे उनको घर दिलाना है, house committee है, library committee and all. Then we have consultative committees. So there are two kind of committee. One is parliamentary committee and another is consultative committee. Consult किया जाता है important चीज़ों के लिए इस committee को, right? So consultative committees are there. Okay. So now we will discuss each topic. This was the overview. So meaning, what is the meaning of parliamentary committee? The parliament is too unwieldy a body to deliberate effectively the issues that come to it. So parliamentary it's unwieldy in the sense that it's not that much intellectual body. It is saying to deliberate every issue that comes to it too much effectively. Okay, the function of parliament are varied. It has varied functions and complex, difficult functions, and very big voluminous. That is why, moreover, it has neither the adequate time and necessary expertise to make a detailed scrutiny of all the legislative measures and other matters. That is the thing कि वर्क काम बहुत ज़्यादा है और उतना एक्सपर्टीज़ नहीं है कि पार्लियामेंट हर एक चीज़ को डिस्कस कर सके. Therefore, it is assisted by a number of committees in the discharge of the duties. इसीलिए बहुत सारे कमेटी का रोल आता है कि काम बहुत ज़्यादा है और आपके पास उतना एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो हम बहुत सारे कमिटीज़ को इसीलिए बुलाए गए हैं और बनाते हैं ताकि उसके फंक्शंस को कर सके. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स अ मेंशन इन दिस कमिटी. तो कमिटीज़ आर ऑल्सो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Makes the mention of this committee at different places, but without making any specific provisions regarding their composition, tenure and functioning. तो बिना कोई specific provisions के, so specific provisions are not mentioned. Only what is mentioned is अलग अलग कमिटी के बारे में कहीं कहीं mentioned है, but specific provisions नहीं है mentioned about its composition क्या होगा, tenure कितने होंगे, कौन सा कमिटी क्या फंक्शन करेगा. All these matters are dealt with the rules of two houses. तो ये सारे मैटर कहाँ पे डेल्ट हैं कि रूल्स ऑफ टू हाउसेस है, दो हाउसेस का रूल्स है, रूल्स ऑफ लोकसभा एंड रूल्स ऑफ राज्यसभा. दोज टू रूल्स ऑफ द हाउसेस हैं दैट विल डील विद द कमिटी सिस्टम. अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट्री कमिटी, इसीलिए पार्लियामेंट्री कमिटी क्या होता है. अब है कि पार्लियामेंट्री कमिटी मीन्स अ कमिटी, ए कमिटी दैट. अब है कि देखिए पार्लियामेंट्री कमिटी होता है, पार्लियामेंट्री कमिटी का क्या मतलब होता है, दैट वैसा पार्लियामेंट्री कमिटी वो कमिटी होता है दैट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन. अब यहाँ ये बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपॉइंटेड एंड इलेक्टेड.
यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ क्या होता है अपॉइंटेड और इलेक्टेड का मतलब। इलेक्टेड इन द सेंस कि इट इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द हाउस, द elected by the member of the house। appointment का मतलब होता है कि anybody who is put in position by elected person। for example कि चेयरमैन किसी को रखेगा उस पोजीशन पे एंड ही कैन बी रिमूव्ड एनी टाइप ऑन द विल्स ऑफ द चेयरमैन, और चेयरमैन या स्पीकर। तो वही होता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो सेक्रेटारिएट जो होता है, सेक्रेटारिएट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, दैट इज ही कैन इवन बी रिमूव्ड एनी टाइम। ठीक है। नॉमिनेटेड, और नॉमिनेटेड होता है कि इन केस ऑफ इज अगर उसका प्रेजेंस ज़्यादा नहीं है तो इट विल बी नॉमिनेटेड। फॉर एग्जांपल एंग्लो इंडियंस आर नॉमिनेटेड, 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड होते हैं लोकसभा में, 12 इन राज्यसभा। तो हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब क्या होता है कि अपॉइंटेड हो या इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड भी हो सकता है। तीसरा है वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर और डायरेक्शन के में काम करे। प्रेजेंट इज रिपोर्ट टू द हाउस और टू द स्पीकर और चेयरमैन एंड इट हैज़ टू प्रेजेंट इज रिपोर्ट, जो भी काम किया गया है एंड इट्स रिपोर्ट इट हैज़ टू प्रेजेंट टू द स्पीकर और चेयरमैन। हैज़ अ सेक्रेटारिएट होगा प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा, और उसका एक सेक्रेटारिएट भी होगा जिसमें वो फंक्शन करेगा। तो दीज आर द 4 प्रोविजंस दैट हैज़ टू सेटिस्फाई फॉर इट टू बिकम अ पार्लियामेंट्री कमेटी। क्या है? अपॉइंटमेंट होना चाहिए, डायरेक्शन के में काम करना चाहिए एंड रिपोर्ट प्रेजेंट करना चाहिए टू द बोथ द हाउसेस एंड इट आल्सो हैज़ अ सेक्रेटारिएट। तो 4 चीज़ है। और दूसरा है एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, दूसरा द कंसल्टेटिव कमेटी विच ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट पार्लियामेंट्री कमेटी आर नॉट पार्लियामेंट्री कमेटी एज दे नॉट फुलफिल द अबव कंडीशंस। तो कंसल्ट वही है ना कि पार्लियामेंट्री कमेटी होती है और कंसल्टेटिव कमेटी होती है। तो कंसल्टेटिव कमेटी डज नॉट फुलफिल ऑल द 4 प्रोविजंस अबव एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है वो। अब अगला है क्लासिफिकेशंस। हाउ आर दिस कमेटी क्लासिफाइड? ब्रॉडली है पार्लियामेंट्री कमेटी आर 2 काइंड्स, 2 तरह के होते हैं। आगे भी हमने देख लिया कि ये तो हमने देख लिया कि ओवरऑल हाउ कैन यू डिवाइड द कमिटीज। फर्स्ट आर पार्लियामेंट्री कमेटी एंड कंसल्टेटिव कमेटी। सो पार्लियामेंट्री कमेटी हैज टू provide what 4 things under the 4 headings. If it comes, it satisfies 4 conditions, then only it will be categorized as parliamentary committee, and if it is not satisfying then it will be known as कंसल्टेटिव कमेटी। नाउ देयर इज फर्दर क्लासिफिकेशन। अब फर्दर उसका और डिवीजन करेंगे कि ब्रॉडली पार्लियामेंट्री कमेटी का बारे में बात कर रहे हैं, कंसल्टेटिव कमेटी नहीं बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी का बात किया जा रहा है। 2 तरह का होता है। फर्स्ट इज स्टैंडिंग कमेटी। पहला क्या होता है? स्टैंडिंग कमेटी, और दूसरा है एडहॉक कमेटी। अब स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है कि इट इज़ मेड फॉर स्पेशल काइंड ऑफ थिंग के लिए और परमानेंट होता है। एडहॉक इज ओनली फॉर टेम्पररी, एज द नेम सजेस्ट। द फॉर्मर आर परमानेंट। फॉर्मर क्या है? परमानेंट है, कंस्टिट्यूटेड एवरी ईयर और पीरियडिकली। तो फॉर्मर परमानेंट इन द सेंस कि वो हर एक साल बनाया जाता है या एक टाइम के बाद बनाया जाएगा। एंड वर्क ऑन कंटिन्यूस बेसिस, मतलब इट्स परमानेंट, दैट्स व्हाई इट विल वर्क ऑन कंटिन्यूस बेसिस, व्हाइल लेटर आर टेम्पररी एंड सीज टू एग्जिस्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टास्क असाइंड टू देम। मगर बाकी जो होते हैं दे आर टेम्पररी इन नेचर, मतलब ओनली फॉर a specific time they will be made, and then when that completion of tasks occurs, so it will be put to it will be removed. Okay, so now we'll discuss standing committee. Standing committee क्या होता है? On the basis of the nature of function, what kind of function they are doing, standing committee are of 6 categories में divide किया गया है। Standing categories committee are classified into 6 categories. What are those 6 categories? First is we'll see first is financial committee, second is departmental standing committee, committee to inquire, committee to scrutinize and control, committee related to the day-to-day business of the houses, और छठा कमेटी है हाउस कीपिंग कमेटी और सर्विस कमेटी। तो ये 6 तरह के कमेटी हैं। ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है जो कि उसमें भी स्टैंडिंग कमेटी है। अब ये परमानेंट रहेगा, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इनको नहीं लगाया जाता है। हर एक साल इन्हें जो है कंस्टिट्यूट किया जाता है एवरी ईयर या पीरियडिकली इन द सेंस कि एक टाइम के बाद, और ये कंटिन्यूस होते हैं। तो व्हाट आर फाइनेंशियल कमिटीज़? फाइनेंशियल कमिटीज़ में 3 हैं। व्हाट आर दोज 3 में क्या क्या है? पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है, और अकाउंट। तो 3 तरह की कमेटी हैं विच आर डेजिग्नेटेड एज फाइनेंशियल कमेटी: पैक, एस्टीमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है। दूसरा है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। दूसरा क्या है? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, 24 हैं। तो ज़्यादा लोकसभा में 16+8 डिवीज़न है, 16+8 राज्यसभा। कमिटी टू इंक्वायरी, कमिटी टू इंक्वायर में है कि कमिटी टू ऑन पिटीशन, प्रिविलेजेस एंड एथिक्स कमिटी। इंक्वायरी में क्या होता है कि वट एवर सर्टेन चीज़ इंक्वायर करना होता है, किसी चीज़ के बारे में पता लगाना रहता है, तो उसमें भी है क्या है कि कमिटी टू ऑन पिटीशंस है, प्रिविलेजेस भी है,
और एथिक्स कमेटी, कमेटी ऑन स्क्रूटनी एंड कंट्रोल, स्क्रूटनी मतलब क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, या किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना रहता है लोकसभा में, तो उसके लिए कमेटी बनाया जाता है। वो कौन कौन सा है? गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट एश्योरेंसेस क्या होता है। गवर्नमेंट विल प्रॉमिस समथिंग इन द इलेक्शन एंड वेदर इट हैज़ बीन डिलीवर्ड और नॉट, दैट इज गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। देन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये बी जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इट हैज़ बीन आस्क्ड, क्वेश्चंस पूछा गया है इसमें प्रीलिम्स में। वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस आल्सो ऑन दिस पार्टिकुलर चैप्टर्स। सो कमिटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल, पेपर लेड ऑन द टेबल होता है कि वट एवर द रिपोर्ट्स हैज़ बीन सबमिटेड उससे रिलेटेड कमिटी होता है। ऑन वेलफेयर ऑफ SC and STs, SC/STs, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए भी कमेटी बनाई जाती है। और कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कमेटी है। तो ये सारा कमेटी जो है स्क्रूटनी एंड कंट्रोल में आती है। ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अब ज्वाइंट कमेटी क्या होता है? देखिए, ज्वाइंट कमेटी होता है कि अगर दोनों हाउस से मेंबर्स आ रहे हैं, मेंबर्स आर कमिंग फ्रॉम लोकसभा ऑल्सो एंड मेंबर्स आर कमिंग फ्रॉम राज्यसभा ऑल्सो, देन इट विल बी अ फॉर्म ऑफ ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। विल डिस्कस ऑल दिस कमेटी इन डिटेल्स लेटर इन द कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। अगला है, पांचवा है कमिटी रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। अब डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस है कि जैसे एजेंडा ऑफ द डे हैज़ टू बी फॉर्म्ड एंड देन अदर बिजनेस आर ऑल्सो देयर, कि जैसे कोई बिल आया, रिजोल्यूशन आया, तो उससे रिलेटेड जो कमिटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस में है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बताइए चेयरमैन कौन होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू टुडे, हु इज द चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। दूसरा है कमेटी ऑन, ये पार्लियामेंट चैप्टर में का ही पार्ट है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रिजोल्यूशन, कि प्राइवेट मेंबर बिल है, इवन प्राइवेट मेंबर बिल्स आर देयर, तो उससे रिलेटेड जो कमेटी होगा उसके भी क्या प्रोविजंस है, प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, दैट आल्सो इज द सेकंड क्वेश्चन। देन व्हेन कैन अ प्राइवेट मेंबर ब्रिंग अ बिल एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू प्राइवेट मेंबर बिल। थर्ड है रूल्स कमेटी है, और फोर्थ है कमिटी ऑन अब्सेंस ऑफ मेंबर फ्रॉम सिटिंग इन द हाउस। अब अब्सेंस ऑफ कमिटी ऑन अब्सेंस ऑफ मेंबर से फ्रॉम सिटिंग इन द हाउस, ऐसे भी कमिटी है दैट विल cater to the needs और दैट विल see to it that how members are coming into the house or not, राइट। तो ये हमने देख लिया। कमिटी ऑन डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस देखती है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बिजनेस हाउस में बिजनेस हो रही है, लोकसभा राज्यसभा में कैसा चल रहा है उसके बारे में। दूसरा है, छठा है हाउस कीपिंग कमेटी और सर्विस कमेटी, दैट इज कमिटी कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज ऑफ मेंबर। तो ये मेंबर्स को जो सर्विसेज देना रहता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा, दे ऑल्सो रिक्वायर सर्टन सर्विसेज। तो उससे रिलेटेड क्या है कमेटी? पहला है जनरल पर्पज कमेटी, दूसरा है हाउस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मेंबर्स। तो हाउस कमेटी भी देखेंगे कि घर दिलाना, इफ घर दिलाती है ये कमेटी इन द सेंस दैट दे विल सी टू इट दैट ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर अलोकेटेड फॉर प्रॉपर हाउस, एंड द लाइब्रेरी कमेटी इज ऑल्सो देयर। विल डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल। तो ये हमने क्या देखा, ये डिस्कशन हमने कर लिया। स्टैंडिंग कमेटी था ये, पहले हमने देखा मीनिंग क्या होता है, वाई कमेटी, why parliamentary committee, then we saw that what is parliamentary committee and consultative committee। broad दो तरह के कमेटी होते हैं। अगर broadly divide किया जाए, parliamentary committee को 4 functions होने चाहिए, if they are satisfying all these 4 things then only they will be categorized as parliamentary committee। then we have consultative committee also we saw। then we saw कि broad classification किया जाए classification किया जाएगा, तो उसमें standing committee and ad hoc committee 2 टाइप होते हैं। standing मतलब permanent होता है, ad hoc मतलब for a temporary period, it is brought for a specific purpose and then when the task is complete it will be absorbed। स्टैंडिंग कमेटी के भी हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया और 6 कैटेगरीज का फर्दर सेग्रीगेशन एंड डिवीजन भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे एड हॉक कमेटी क्या होता है, व्हाट इज एड हॉक कमेटी, ठीक है, टेम्पोररी नेचर। एड हॉक कमेटी कैन बी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, वही है स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है और काम खत्म होता है इसको भी बंद कर दिया जाता है। अब इसका भी दो कैटेगरी है, दैट इज इंक्वायरी कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी। अब उसका भी एड हॉक का भी इंक्वायरी कमेटी और एडवाइजरी कमेटी है। इसमें क्या है, इंक्वायरी कमेटी आर कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बनाया जाता है आइदर बाय द 2 हाउस और ऑन अ मोशन अडॉप्टेड ऑन द बिहाफ। और अब देखिए इसमें क्या होता है कि आइदर बाय द 2 हाउस ऑन अ मोशन अडॉप्टेड इन द बिहाफ और बाय द स्पीकर या चेयरमैन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब इंक्वायरी कमेटी होता है कि कोई भी स्पेशल प्रॉब्लम आ गया है, मान लीजिए MP लैड है जैसे, इंक्वायरी कमेटी क्या होता है, 2 हाउसेस ऑन अ मोशन अडॉप्टेड, दोनों हाउस ज्वाइंट कमेटी टाइप होता है। कि अब देखिए इसमें इसका थोड़ा डिटेल प्रोसीड्योर है, उतना जानने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ मोशन इज ब्रॉट, इफ यू वांट टू डेवलप, अगर कोई कमेटी को कंस्टिट्यूट होना है तो ए मोशन विल बी ब्रॉट, एक मोशन लाया जाएगा एक हाउस में एंड इट विल बी सेंट टू अदर हाउस, एंड इफ अदर हाउस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड विद दैट मोशन देन मेंबर्स फ्रॉम दैट हाउस विल ऑल्सो कम एंड ज्वाइन दिस इंक्वायरी कमेटी। तो ज्वाइंट कमेटी टाइप होता है, या तो ये ज्वाइंट कमेटी होगा
या इट विल बी अपॉइंटेड बाय स्पीकर या चेयरमैन। क्यों रहता है इंक्वायरी करने के लिए? एज द नेम सजेस्ट इंक्वायरी करना है कि कोई भी चीज़ जहाँ पे कहीं घोटाला हो गया है एंड कहीं पे स्कैम हो गया है, तो इट विल टेक इनटू कंसिडरेशन कि कोई स्कैम हुआ है, वो स्कैम ना हो, तो उससे रिलेटेड है। तो उसमें कौन कौन से बनाए गए थे? बहुत सारे कमिटीज़ हैं इसमें जो बनाए गए थे, देखते हैं क्या सब थे वो, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये है कि कमिटीज ऑन द कंडक्ट ऑफ द सर्टेन मेंबर्स ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल एंड एड्रेस। अब प्रेसिडेंशियल एड्रेस के टाइम किस मेंबर का क्या कंडक्ट रहा, जैसे 5 ईयर प्लान के टाइम पे भी था, रेलवे के से रिलेटेड भी था, और एमपी लैड में कोई इशू ना हो, बिकॉज मेंबर्स आर ऑल्सो गिवन एलोकेटेड सर्टेन फंड्स फॉर ईच ईयर 5 करोड़ रुपीज़ दिया जाता है कि कैसे स्पेंड करना है, तो उसमें कुछ इशू ना हो, या बफर्स कॉन्ट्रैक्ट है, फर्टिलाइजर प्राइसिंग है, फिर सिक्योरिटी एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, जॉइंट कमिटी ऑन स्टॉक मार्केट स्कैम में हुआ था, उसके बाद पार्लियामेंट्री कम्प्लेक्सेस हैं। देन वी हैव कमिटी ऑन प्रोविजन ऑफ कंप्यूटर्स टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कंप्यूटर्स दिए जाते हैं ऑफिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड लोकसभा सेक्रेटारिएट। कमिटी ऑन फूड मैनेजमेंट इन पार्लियामेंट्री हाउस ऑफ कम्प्लेक्स, फूड कैसे मैनेज करना है। इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्ट्रेट्स स्टैचूज ऑफ नेशनल लीडर्स एंड पार्लियामेंट्री इन द हाउस। अब नेशनल लीडर वगैरह का कहीं पे स्टैचूज वगैरह लगाना है तो उससे रिलेटेड है। देन मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज कैरेक्टर है, violation of protocol norms and contemptuous behavior of the government officers. A joint committee on to examine matter related to the allocation and pricing of the telecom license. Telecom license से related भी है कुछ नॉर्मली जो अभी इशू हुआ था, तो वही है कि जो प्रॉब्लम होता है, जो नेशन का इमर्जिंग प्रॉब्लम है या कहीं स्कैम हुआ है, तो उसके लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है। दूसरा है एडवाइजरी कमेटी। ये हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं एडहॉक कमेटी का पार्ट, इंक्वायरी कमेटी और अब है एडवाइजरी कमेटी। तो एडवाइजरी कमेटी में क्या है? इंक्लूड सेलेक्ट और ज्वाइंट कमेटी होते हैं। इसमें सेलेक्ट और ज्वाइंट कमेटी होता है ऑन बिल्स विच आर, अब सेलेक्ट और ज्वाइंट कमेटी, सेलेक्ट होता है एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है। सेलेक्ट कमिटी, सर्टेन कमिटीज विच आर मेड टू अडेयर टू ए पार्टिकुलर पर्पस, कोई पर्पस होता है उसके लिए एडवाइजरी कमेटी इंक्लूड सेलेक्ट होते हैं। और ये ज्वाइंट कमेटी होते हैं। ज्वाइंट कमेटी मतलब इसमें दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से मेंबर्स रहते हैं। ऑन बिल्स, बिल में बनाया जाएगा विच आर अपॉइंटेड टू कंसिडर एंड रिपोर्ट ऑन पार्टिकुलर बिल। ओके, तो कंसिडर करने के लिए कोई बिल आता है पार्लियामेंट में तो एडवाइजरी कमेटी होना चाहिए कि उस पार्टिकुलर बिल पे कंसिडर करे, स्क्रूटनी करे, रिपोर्ट टू कंसिडर करो ये बिल को और रिपोर्ट करो पार्टिकुलर बिल को। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस इन डिटेल्स, व्हाट आर द रोल ऑफ दिस कमिटी ड्यूरिंग द बजट सेशन में या during the passage of bill in the parliament. What is the role of committee? There also we have discussed in previous lectures. You can go and watch those lectures और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इस चीज़ों पे। अब these committee are distinguishable. ये distinguishable from the other ad hoc committees in as much as they are concerned with the bills. अब ad hoc committee से कैसे ये distinguishable है कि ये बिल से कंसिडर है एंड द प्रोसीड्योर्स टू बी फॉलोड बाय देम इज लेड डाउन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर्स। और जो भी प्रोसीड्योर इसको फॉलो करना है, अब कोई कमिटीज भी है तो इट्स नॉट लाइक दे विल एक्ट ऑन देयर ओन, देयर आर सर्टेन प्रोसीड्योर्स, रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर्स एंड द डायरेक्शन बाय द स्पीकर। तो उनको भी इसी से काम करना है कि रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर्स या स्पीकर का डायरेक्शन के हमेशा से काम करना, बिकॉज ही इज द वन हु कैन अपॉइंट देम। अब है कि एडवाइजरी कमेटी का क्या काम होता है, वो देखते हैं कि कैसे वो बिल को स्क्रूटनी करता है। अब है कि व्हेन अ बिल कम्स अप बिफोर अ पार्लियामेंट फॉर जनरल डिस्कशन के लिए आता है, इट इज़ ओपन टू दैट हाउस और टू रेफर टू सेलेक्ट कमेटी। वही है सेलेक्ट कमेटी है। तो अब सेलेक्ट कमेटी जैसे बताया कि एक स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाया जाता है कि अब एक पार्टिकुलर काइंड ऑफ बिल आया, मेडिकल बिल जैसे आया है, तो उससे रिलेटेड के लिए कोई एक सेलेक्ट कमेटी होगी। तो ऑफ दैट तो ओके, कोई भी अगर बिल आया है तो इट इज़ ओपन टू दैट हाउस, कि हाउस में भी डिस्कशन हो सकती है या ये सेलेक्ट कमेटी डिस्कस करेगा ऑफ दैट हाउस, और अ जॉइंट कमेटी ऑफ बोथ द हाउस, या जॉइंट कमेटी इन विच मेंबर्स फ्रॉम both the house will be there, they can also discuss it. A motion to this effect has to be moved and adopted in the house in which the bill comes up for the consideration. अब है कि मोशन लाना पड़ेगा एंड अडॉप्ट करना पड़ेगा हाउस को, इन विच बिल कम्स फॉर, जिसमें बिल कंसिडरेशन के लिए आएगा। इन दिस केस द मोशन अडॉप्टेड इज फॉर द रेफरेंस ऑफ द बिल टू द जॉइंट कमेटी। अब जहाँ पे भी मोशन आएगा, हमने पहले भी पार्लियामेंट चैप्टर में देखा है, जब तक मोशन नहीं आएगा तब तक डिस्कशन किसी से कोई चालू नहीं कर पाएगा। तो मोशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर डिस्कशन टू अकर। द डिसीजन इज कन्वे टू द अदर हाउस रिक्वेस्टिंग द मेंबर टू द नॉमिनेट, कन्वेट करना पड़ेगा डिस्कशन को, रिक्वेस्टिंग द मेंबर टू नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ द अदर हाउस टू सर्व ऑन द कमिटी। तो इसमें क्या होगा, उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगा, जैसे ही दूसरे हाउस में जाता है तो उसके बाद रिक्वेस्ट जाता है कि आप नॉमिनेट करें कुछ मेंबर, ताकि उस कमिटी में एक जॉइंट कमिटी बन सके एंड देन जॉइंट कमिटी कैन कंसिडर दैट प्रॉपर बिल। तो हमने देख लिया ना, हम ये देख रहे हैं कि बिल जो हाउस में जाता है तो उसमें कमिटी की स्क्रूटनी होती है। दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग कि वो कैसे स्क्रूटनी होती है। एक हाउस में आया, फिर दूसरे हाउस में मोशन जाएगा,
फिर डिसाइड होगा कि दूसरे हाउस के मेंबर आएंगे एंड दे विल फ्रेम द रूल्स एंड ऑल कि कैसे डिस्कशन होगा। द सेलेक्ट और ज्वाइंट कमिटी कंसिडर द बिल क्लॉज बाय क्लॉज। अब जो है बिल जो है, जो भी बिल आता है, तो सिंस द पार्लियामेंटेरियंस डज नॉट हैव दैट मच एक्सपर्टीज, इसलिए कमिटी बनाई गई है और वो कंसिडर करते हैं बिल क्लॉज बाय क्लॉज जस्ट एज द टू हाउस डू। जैसे दोनों हाउस करते हैं उसी तरह से ये करते हैं। अमेंडमेंट टू वेरियस क्लॉज कैन बी मूव्ड बाय मेंबर ऑफ द कमिटी। अमेंडमेंट भी किया कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है लाइन यहाँ पे। अमेंडमेंट टू द वेरियस क्लॉज कैन बी मूव्ड बाय द कमिटी कर सकती है। कमिटी कैन आल्सो टेक एविडेंसेस ऑफ एसोसिएशन। कमिटी एसोसिएशंस, पब्लिक बॉडीज और एक्सपर्ट्स की हेल्प भी ले सकती है हु आर इंटरेस्टेड इन द, जो जिसको इंटरेस्ट है बिल में। आफ्टर द बिल हैज दस बीन कंसिडर्ड द कमिटी सबमिट। अगर बिल कंसिडर कर लिया गया, कमिटी विल कंसिडर द बिल, उसमें अमेंडमेंट भी करेगी। जब कमिटी बिल कंसिडर करेगी देन सबमिट द रिपोर्ट टू द हाउस। बिल पार्लियामेंट में आया, किसी हाउस में आएगा, कमिटी बनेगी, दोनों हाउस से कमिटी, दोनों हाउस के मेंबर आएंगे, डिस्कशन होगा, दे कैन अमेंड ऑल्सो, कंसिडर करेगा, एक्सपर्ट का भी एडवाइस लेगा और सबमिट कर देगा हाउस को कि देखो वी हैव डिस्कस ऑन दिस बिल एंड दिस इज द रिपोर्ट दैट वी हैव प्रिपेयर्ड, इट विल बी सबमिटेड टू द हाउस। मेंबर हु डू नॉट एग्री विद द मेजोरिटी रिपोर्ट। अब है कि मेंबर्स, अब क्या है कि एवरीथिंग इज इन अल्टीमेटली इन द हैंड ऑफ द पार्लियामेंट ओनली, in the members of the parliament only. This committee will just make report, but final decision will be taken by the members only. अब members who do not agree with the majority report may append their minutes of dissent to the report. तो वो बताएंगे या कि इस चीज़ से हम डिसएग्री करते हैं। ओके, अब अगला है, तो ये हमने देख लिया कि एडहॉक कमेटी का देखा, दो पार्ट होते हैं, इंक्वायरी एंड एडवाइजरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी होता है कि मेजर स्कैम्स या कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंक्वायरी करना हो तो देन दे आर सेटअप फ्रॉम टाइम टू टाइम, सेटअप किया जाता है। और उसके बाद फिर हमने देखा एडवाइजरी कमेटी, जो हमने पार्लियामेंट में पढ़ा था कि कोई भी बिल भी आता है तो कैसे उसका डिस्कशन होता है एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द कमिटी और ज्वाइंट कमिटी। तो ये एडहॉक है। एडवाइजरी कमेटी इज आल्सो एडहॉक इन द सेंस दैट वो कम समय के लिए ही बनाया जाता है, काम होते ही उसको बंद कर दिया जाता है। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग कमेटी। यहाँ हमने डिस्कस किया है, ये देखिए कि 6 पार्ट हैं स्टैंडिंग कमेटी का, 6 कैटेगरीज हैं। तो पहला कैटेगरी अब डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल कमेटी क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल कमेटी के बारे में हम पढ़ेंगे अब। व्हाट आर दोज फाइनेंशियल कमिटीज। फाइनेंस एज द नेम सजेस्ट कि इट विल सी टू इट दैट whatever the finances that has been allocated by the parliament to the executives, तो वो कितना अच्छे से वो फाइनेंस जो हम पैसा दे रहे हैं, वो बजट में जो पैसा दिया जाता है वो कितने अच्छे से कर पा रहा है। तो उसके लिए 3 कमेटी है फाइनेंस कमेटी में। पब्लिक अकाउंट कमेटी है और कौन सा कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है, एंड द थर्ड इज 3 कमेटी है, बताइए कौन सा है। इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, 2 ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है और एस्टीमेट कमेटी, जिसके बारे में दिया हुआ है। पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसके बारे में देखते हैं, इसको पैक भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। एंड क्वेश्चन हैज आल्सो कम, इनफैक्ट इन मेंस क्वेश्चन वाज देयर कि व्हाट इज द रोल ऑफ द पैक कमेटी in maintaining discussions, in maintaining the legislative control over the executive, mainly financial control. तो पैक कमेटी है, कमेटी was set up in 1921. The committee was set up in 1921 under the provision of the Government of India Act 1919. तो इसका डेट भी इम्पॉर्टेंट होता है, sometimes ये डेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि 1921 में बनाया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड हैज़ सिंस बीन इन एग्जिस्टेंस 1921 से ही। अब हमें पता है कि मॉन्टेग क्लेम्स फॉर रिफॉर्म आया था 1919 में, तो उस टाइम पे ही ये कमेटी बनाई गई थी और ये एग्जिस्टेंस में है सिंस देन। एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स। अभी प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं इसमें? 22 मेंबर्स हैं। इसमें 15 और मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी फ्रॉम लोकसभा, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। तो हमने देख लिया कब बना था, 1921 में ही बना था। किस एक्ट से आया है? 1919 के एक्ट से आया। कितने मेंबर्स हैं? 22 मेंबर्स हैं, जिसमें 15 मेंबर्स कहाँ होंगे? लोकसभा में, 7 राज्यसभा में होंगे। द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर। हमने देखा था कि ये जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन इलेक्टेड होते हैं, एवरी ईयर इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम अमॉन्ग इट्स मेंबर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ये प्रिंसिपल ऑफ सिंगल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहाँ यूज होता है, किसके इलेक्शंस में यूज होता है? आपके लिए हिंट है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है। और भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि ये प्रोविजन जो है किसके लिए और यूज होता है। तो ये पैक भी देखा, पैक के केस में भी ये होता है कि पैक का मेंबर जब चूज करना पड़ता है तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दस ऑल पार्टीज गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन इट। इसीलिए जितने भी पार्टी हैं
गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन इट। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर इज़ 1 ईयर, क्योंकि 1 साल के बाद फिर चूज किया जाएगा, तो 1 साल होता है। मिनिस्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी कमिटी का, ए मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ कमिटी, कि यू कैन नॉट elect a member to a minister to that committee. The chairperson of the committee is appointed. Chairperson of committee कैसे appoint होगा? The chairperson of the committee is appointed by from amongst its members by the speaker. Who will appoint? ये भी important question बनता है प्री के लिए कि who appoints the member of the committee? तो speaker appoints. Until 1966-67 the chairman of the committee belonged to the ruling party. It was a provision 1966-67 में कि chairman of the committee will always belong to ruling party. We have already seen कि every party get equal representation because of single transferable vote and because of the nature of selection. तो however since 1967 a convention है, ये convention है कि has been developed wherein the chairman of the committee is selected invariably from the opposition. अब क्या किया गया है? पहले तक क्या था पैक में, इसका जो चेयरमैन होता था वो किसका, रूलिंग पार्टी का होता था, मगर एक कन्वेंशन है, इट इज़ अमेंडमेंट नहीं किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन है कि जो सभी मान लिए हैं, जिसमें सभी मेंबर मानते हैं कि ओके वी आर गोइंग टू फॉलो दिस, कि पैक जो होगा हैज डेवलप द चेयरमैन ऑफ द कमिटी सेलेक्टेड इनवेरिएबली, मतलब कि हमेशा वो अपोजिशन से ही होगा। अब यू जस्ट ट्राई टू राइट इन द कमेंट सेक्शन क्यों ऐसा होता है। जस्ट थिंक अबाउट थिंक अबाउट दिस पार्टिकुलर कमिटी, वाई क्यों कन्वेंशन हुआ होगा, कभी ये सोचिए जरा, एंड ट्राई टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि वाई द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी दैट इज पैक परमानेंट, ये जो है कमिटी जो है पैक पब्लिक अकाउंट कमिटी का जो चेयरमैन है वो क्यों अपोजिशन का ही मेंबर होता है। जस्ट ट्राई टू थिंक एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो ये हमने देख लिया कि कैसे होता है, कितने मेंबर्स होते हैं इसमें, और मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है इसमें, चेयरमैन अपॉइंट करता है, हर एक साल अपॉइंटमेंट होता है, ये 1919 के एक्ट से आया था। अब हम देखेंगे फंक्शंस क्या होता है इसका। द फंक्शंस ऑफ द कमिटी इज टू एग्जामिन ऑल द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल। क्या करता है ये कि कैग जो होती है कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, जो रिपोर्ट देती है वो इसको एग्जामिन करता है, स्क्रूटनी करता है, विच आर लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट लेड करता है। मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इस कमिटी का है, एग्जामिन करेगा कैग रिपोर्ट एंड विच आर लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट ले करता है पार्लियामेंट में। अब एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि टेल मी व्हाट आर ऑल अदर रिपोर्ट्स दैट प्रेसिडेंट ले इन द पार्लियामेंट। और भी अलग रिपोर्ट है, जैसे कैग की रिपोर्ट है, तो वैसे सोचिए और लिखिए इसमें, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। द कैग सबमिट द 3 ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। नाउ कैग क्या करता है, 3 ऑडिट रिपोर्ट करता है। कौन कौन से रिपोर्ट हैं वो? The audit report on appropriation account, audit report on finance account, and audit report on public undertaking. So CAG जो प्रेसिडेंट ले करेगा पार्लियामेंट में, एंड द CAG जो है 3 ऑडिट रिपोर्ट देता है, अप्रोप्रिएशन, फाइनेंस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग, 3 रिपोर्ट दे दिया है। अब है कि द कमिटी, और दूसरा फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन तो है एग्जामिन करेगा क्या का रिपोर्ट का, दूसरा है द कमिटी एग्जामिन पब्लिक एक्सपेंडिचर नॉट फ्रॉम लीगल एंड फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू टू डिस्कवर टेक्निकल irregularities but also from the point of view of economy, prudence, wisdom and propriety to bring out the cases of wastage, loss, corruption, extravagance, insufficiency and nugatory expenses. What does that mean? कि इसका जो मेथड है एग्जामिनेशन करने का, अब है कि आप एग्जामिन कर रहे हैं किसी चीज़ को, स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, तो लीगल पॉइंट या फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेगा। अब इसका काम देख लिया ना हमने कि ये क्या का रिपोर्ट का को ये एग्जामिन करता है। दूसरा चीज़, अब एग्जामिनेशन जो करता है उसमें क्या देखेगा ये कि कोई ऑन द किस कैसे करेगा कि टेक्निकल इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है, बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इकोनॉमी, प्रूडेंस, विजडम एंड प्रोप्राइटी। अब इसको समझाऊंगा मैं कैसे कि देखिए क्या ये जो कोई भी चीज़ एक्सपेंसेस कहीं पे हुआ है, मान लीजिए कहीं पे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट कर रही है, तो मे बी दैट पार्टिकुलर एक्सपेंसेस इज गुड फ्रॉम द, इट इज़ ट्रू फ्रॉम द लीगल एंड फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू, सही हो सकता है लीगल एंड फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू, बट वेदर दैट एक्सपेंडिचर इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी एंड प्रूडेंस सही था। मान लीजिए कहीं पे चेयर खरीदा जा रहा है, किसी भी स्कूल में आपको लगाना है एंड यू आर बाइंग सम चेयर, तो अब चेयर में आप 1000 करोड़ गवर्नमेंट ने स्पेंड कर दी, तो ये देखेगी पैक कि क्या वो काम 600 करोड़ में हो सकता था अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा विजडम लगाती या
इकोनॉमी लगाती, अगर गवर्नमेंट सोचती खर्चा कम बचाने का तो क्या कर सकती थी कि नहीं क्या करती। तो दैट इज़ व्हाट पैक इज़ गोइंग टू सी। तो वो देखेगी पैक कि गवर्नमेंट जो है वेस्टेज तो नहीं कर दिया, वेस्ट लॉस या करप्शन तो नहीं हो गया, या एक्स्ट्रावेजेंस तो नहीं दिखा रही है, एक्स्ट्रावेजेंट या इनएफिशिएंट गवर्नमेंट तो नहीं है, या न्यूगेटरी एक्सपेंसेस तो नहीं है, फालतू का खर्चा तो नहीं है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी सम एक्सपेंडिचर, जैसे चेयर खरीदना है तो ये सही है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट कौन सा चेयर खरीदा गया, क्या कोई कम पैसे में भी चेयर खरीद सकते थे, एंड दैट वर्क कैन बी डन। दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ पैक। कि परमानेंट अकाउंट कमेटी, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो ये भी देखेगी, पहला तो क्या का रिपोर्ट देखेगी और उसमें ये प्रिंसिपल यूज करती है, लीगल और फॉर्मल नहीं यूज करती है। लीगल फॉर्मल तो होना ही चाहिए, मगर ये सब भी होना चाहिए। इन मोर डिटेल द फंक्शन ऑफ द कमिटी यार, और डिटेल में देखते हैं कि क्या है फंक्शन ऑफ द कमिटी। टू एग्जामिन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द फाइनेंस अकाउंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट और एनी अदर अकाउंट लेड बाय द लोकसभा। खाली यूनियन गवर्नमेंट का नहीं, कोई अदर अकाउंट भी जो बोलेगा लोकसभा वो अप्रोप्रिएट करेगी, उसको एग्जामिन करेगी, स्क्रूटनी करेगी। द अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपेयर्स द एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद द एक्सपेंडिचर सैंक्शन टू द बाय द पार्लियामेंट थ्रू अप्रोप्रिएशन एक्ट। तो उसमें क्या देखेगी कि क्या पैसा सैंक्शन किया गया था, व्हाट वाज द मनी दैट वाज सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट एंड हाउ मच, व्हाट इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, राइट। व्हाइल द फाइनेंस अकाउंट, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखेगी। और द फाइनेंस अकाउंट में क्या देखेगी, सोज द एनुअल रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट एंड डिसबर्समेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, कि कितना पैसा आया और खर्च कितना हुआ, ये फाइनेंस अकाउंट में। तो देख लिया अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या देखती है और फाइनेंस अकाउंट में क्या देखती है। ये अब दूसरा फंक्शन है, इट स्क्रूटनाइजेज द अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। ये तो हमने पहले भी देखा कि ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग ये स्क्रूटनी करती है, कमिटी हैज टू सेटिस्फाई इटसेल्फ। और कमिटी को क्या सेटिस्फाई करना पड़ता है, हैज टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द मनी दैट हैज बीन डिसबर्स्ड was legally available to applied service for purpose। अब यहाँ पे क्या देखना रहता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ, if any expenditure has already occurred, जो मनी उसके लिए दिया गया था was legally available। कि मेडिकल, for example, if some money was allocated for medical infrastructure, that particular money was used only for medical infrastructure, or it was used for other purposes, like education में खर्चा तो नहीं हो गया वो। तो ये हमने देखा गया है। दूसरा है द एक्सपेंडिचर कन्फर्स टू द अथॉरिटी दैट गवर्न्स इट, कि एक्सपेंडिचर उसी के द्वारा किया गया है which has who has the authority to govern that particular expenditure। तीसरा है एवरी अप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द रिलेटेड रूल्स, कि जो भी रीअप्रोप्रिएशन हुआ है, रीअप्रोप्रिएशन इन द सेंस कि इफ़ यू आर यूजिंग वन मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, जैसे एजुकेशन का पैसा अगर कहीं और आप लगाना चाह रहे हैं तो वो रीअप्रोप्रिएशन होता है, वो रूल्स के अनुसार से हुआ है कि नहीं। तो देख लिया हम कि ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग देती है, तो उसमें भी तीन चीज़ देखती है, लीगली अवेलेबल जो जिसके लिए था उसके लिए खर्च हुआ है, जिसके द्वारा खर्च करना चाहिए था उसके द्वारा खर्च किया गया है, या रूल्स के अनुसार से रीअप्रोप्रिएट हुआ है। तीसरा फंक्शन क्या है, टू एग्जामिन द अकाउंट ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशंस। स्टेट कॉर्पोरेशंस का भी अकाउंट एग्जामिन करती है, ट्रेडिंग कंसर्न्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स एंड द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग ऑन देम। तीनों चीज़ देखती है, स्टेट कॉर्पोरेशंस, ट्रेडिंग कंसर्न्स, ट्रेड से रिलेटेड बॉडीज है उसका भी अकाउंट ये देखेगी, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, और उस पर जो ऑडिट रिपोर्ट करती है कैग, एक्सेप्ट दोज पब्लिक अंडरटेकिंग्स विच आर अलोकेटेड टू द कमिटी ऑफ। अब एक और है, हाँ मैंने बताया था कि एक और कमिटी है, वो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, इसका रिपोर्ट छोड़ करके बाकी जो रिपोर्ट है। अब कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का क्या काम है कि ये PSU की रिपोर्ट देखती है, जितनी भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया PSUs हैं उसकी रिपोर्ट को ये एग्जामिन करती है। तो कैग वॉन्ट डू द सेम, नहीं तो ये डुप्लीकेशन ऑफ इफर्ट हो जाएगा। टू एग्जामिन द अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज, देयर आर सो मेनी बॉडीज दैट आर ऑटोनॉमस बॉडीज हैं which has given the full independency to work, and audit of which is conducted by CAG। जिसका भी रिपोर्ट CAG ऑडिट करती है that will be examined by PAG। that is in short, it can be state corporations or any autonomous or semi-autonomous bodies to consider the report of CAG related to the audit of any receipt or examine the account of stores and stocks। वही है कि रिपोर्ट किसी में क्या ऑडिट ऑफ कोई भी रिसिप्ट, किसी भी कहीं से पैसा आ रहा है और कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहा है वो भी देखेगी। टू एग्जामिन द मनी स्पेंड ऑन एनी सर्विसेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड बाय द लोकसभा फॉर दैट पर्पज। अब हमने देखा था कि बजट में क्या करते हैं कि हर एक मिनिस्ट्रीज को एक पार्टिकुलर अमाउंट एलोकेट किया जाता है, कि एवरी मिनिस्ट्री इज प्रोवाइडेड अ पार्टिकुलर अमाउंट एलोकेट किया जाता है। अब वो पैसा जो है कहाँ खर्च कर रहे हैं, और बाद में भी
ग्रांट दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, राइट। तो बाद में जो ग्रांट दिया गया है, वेदर दैट मनी वाज स्पेंट इन अ प्रॉपर मैनर और नॉट। तो ये हमने देख लिया कि पैक बहुत ही मज़ेदार कमेटी है एंड इट वॉन्ट लेट द गवर्नमेंट स्पेंड मनी। तो हमने देख लिया ये 6-7 फंक्शंस हैं पैक के। जितने भी कैग की रिपोर्ट इन शॉर्ट हम देख सकते हैं, जितने भी कैग की रिपोर्ट है या कैग जो भी ऑडिटिंग करता है तो वो उसकी एग्जामिनिंग करती है, वेदर इट्स रिलेटेड टू PSU, ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस बॉडी, और ये भी देखती है कि बाद में जो पैसे खर्च हुए थे दैट वाज रिलेटेड टू सर्विस और नॉट। इन द फुलफिलमेंट अब है कि देखिए, इन द फुलफिलमेंट ऑफ द एबव फंक्शंस द कमिटी इज असिस्टेड बाय कैग। ऑब्वियसली कैग असिस्ट करता है उनको। In fact, CAG act as a guide, friend, and philosopher of the committee. तो CAG is the best friend of this committee. उसका नाम है PAC, Public Account Committee. On the role played by the committee, Ashok Chandra. अब अशोक चंद्रा, who himself has been a CAG of India, observed over the period of years. अभी एक इसके शान में बोला जा रहा है कुछ लाइन्स पैक का फंक्शनिंग में। Over the years, the committee has entirely fulfilled the expectations that should develop in a powerful force in the control of public expenditure. वही है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे होना चाहिए उसको बहुत अच्छे से देख रही है। इट मस्ट बी क्लेम दैट द ट्रेडिशन एस्टैब्लिश्ड एंड कन्वेंशंस डेवलप्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमिटी कन्वर्ट्स द हाईएस्ट ट्रेडिशन ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये तो हमने देख लिया कि कितने पॉजिटिव चीज़ होते हैं और ये कैसे गवर्नमेंट को अलाउ नहीं करने देती है, और ये क्या प्रोसीड्योर अप्लाई करती है कि इकोनॉमी होना चाहिए, क्या इकोनॉमिकली वायबल था गवर्नमेंट स्पेंड किया, क्या वहाँ और खर्च बचाया जा सकता है। मगर इसमें क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म क्या है कि इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल ऑफ द कमिटी इज लिमिटेड बाय द फॉलोइंग। क्यों कम हो रहा है? ऑन पेपर तो इट्स राइट दैट इट हैज सो मेनी फंक्शंस, बट व्हाट आर हाउ दिस रोल ऑफ कमिटी इज लिमिटेड। कैसे लिमिट कर रहे हैं? व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कमिटी? कमिटी का प्रॉब्लम्स देखते हैं। इट इज नॉट कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी इन ब्रॉडर सेंस। अब क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी इन ब्रॉडर सेंस में ये कंसर्न नहीं है, कुछ ही चीज़ों को ये देखता है, बहुत सारा इसके एम्बिट के बाहर है। इट कंडक्ट द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर्ड। अब देखिए ये इशू, सबसे बड़ा इशू क्या है पैक का? ये सबसे बड़ा इशू ये है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट करता है, इन द सेंस कि इफ योर मनी हैज़ बीन स्पेंट देन ओनली इट विल टेक इन कम एंड सी टू इट दैट वेयर द मनी वाज स्पेंट। अगर आपको सही में you have to see to it that money should be spent in a proper manner, तो that scrutiny has to occur earlier, प्लानिंग स्टेज में होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट ऑलरेडी पैसा खर्च कर चुकी है तब आप बता रहे हो कि गवर्नमेंट ने पैसा यहाँ खर्च कर दिया, तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर मैनर। तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट दैट इज द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक ऑफ पैक। सेकंड थर्ड थिंग इज इट कैन नॉट इंटरवीन इन द मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। अब डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में यू कैन नॉट मैटर। अब कोई भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, नहीं कर रही है, कौन डिपार्टमेंट कहाँ पर पैसा खर्च कर रहा है, तो पैक कैन नॉट इंटरवीन देयर। ओनली आफ्टर द सर्टेन एक्सपेंडिचर हैज ऑकर्ड एंड कैग विल सबमिट द रिपोर्ट, कैग भी रिपोर्ट सबमिट करेगी, देन ओनली इट विल कम इन टू प्ले। तो डे टू डे एग्जामिनेशन में नहीं कर पाएगी। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट करती है। तीसरा है इट्स रिकमेंडेशंस एंड एडवाइजरी, ये भी है, आपने इसको इनफ पावर नहीं दिया है, नॉट बाइंडिंग ऑन द मिनिस्ट्रीज। अब पैक का कोई भी कमेटी का जो रिकमेंडेशंस होता है ना, नॉर्मली इट इज एडवाइजरी नेचर ओनली। कमेटी ने तो बहुत कुछ बोल रखा है, बट द रियल पार्लियामेंट, बट द पार्लियामेंट्री वांट लिसन टू इट। वोट बैंक पॉलिटिक्स कम इनटू अकाउंट हियर। तो इसीलिए है। और अगला है इट इज अ नोट वेस्टेड विद द पावर ऑफ डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर, डिसअलाउंस ऑफ द एक्सपेंडिचर बाय द डिपार्टमेंट। अब हम बहुत बात कर रहे थे कि ये कहाँ का क्या क्या रिपोर्ट में देखती है कि कहाँ पैसा खर्च किए नहीं किए, मगर यहाँ पावर नहीं है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा पैसा कहीं खर्च कर रहा है, बेफिजूल खर्च कर रहा है, तो ये डिसअलाउ कर दे एक्सपेंडिचर बाय द डिपार्टमेंट। दैट पावर इट इज नॉट गिवन दैट अकॉर्डिंग दैट पावर। लास्ट है इट इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड हैंस कैन नॉट इशू एन ऑर्डर। इस पार्लियामेंट्री बॉडी है, पार्लियामेंट्री मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं इसमें, तो इट कैन नॉट इशू ऑर्डर्स, ओनली द पार्लियामेंट कैन टेक अ फाइनल डिसीजन ऑन द फाइंडिंग। तो जो भी फाइंडिंग हुआ वट एवर, इवन रिकमेंडेशंस, इसलिए बहुत सारे कमेटी के जो रिकमेंडेशंस होते हैं दैट आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। तो ये हमने देख लिया क्रिटिसिज्म क्या होते हैं पैक के। एंड वी ऑल्सो सॉ व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं पैक के, कहाँ पे। एंड नाउ वी कैन से दैट इन द फाइनल कंक्लूजन अगर लिखना होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस लिमिटेशंस it has certain benefits and it has to be accorded some more powers so that the effective functioning of the PAC बढ़ा दिया जाए। जैसे ये सब में उसको बाइंडिंग होने चाहिए या डिसअलाउ करने का पावर होना चाहिए। दूसरा कमिटी जो है जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो है एस्टीमेट कमिटी।
द ऑरिजिन ऑफ द कमिटी कैन बी ट्रेस टू द स्टैंडिंग फाइनेंस कमिटी सेटअप इन 1921। वो 1921 में पुराना कमिटी जो पड़ा था वो 1919 का मॉन्टेक क्लेमेंट डिफॉन्ड है। और इसमें क्या था कि स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी बनाई गई थी 1921, वहाँ से ओरिजिन हुआ। द फर्स्ट एस्टीमेट कमिटी, पहला एस्टीमेट कमिटी जो है इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1950 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मिठाई। उसके रिकमेंडेशन से आया था, जॉन मिठाई जो है उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसके रिकमेंडेशन से आया था ये। ओरिजिनली इट हैज, अभी है क्या, ओरिजिनली कितने मेंबर्स थे? ओरिजिनली इसमें 25 मेंबर्स थे, बट इन 1956 मेंबरशिप वाज रेज्ड टू 30। तो अभी कितने मेंबर्स हैं इसमें? एस्टीमेट कमेटी में रेज्ड टू 30 था। ऑल द 30 मेंबर्स आर फ्रॉम द लोकसभा ओनली। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पैक में क्या था? मेंबर्स फ्रॉम बोथ द हाउसेस एंड हियर द मेंबर्स आर ओनली फ्रॉम लोकसभा। द राज्यसभा हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस कमिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस पार्टिकुलर टॉपिक एस्टीमेट कमिटी, कि जितने भी मेंबर्स हैं वो लोकसभा के होंगे। राज्यसभा हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस कमिटी। दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा एवरी ईयर from among its own member according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote. Thus all the parties get due representation in it. So जितने भी पार्टी है सभी पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। The term of the office is 1 year, एक साल के लिए होता है। मिनिस्टर, ये तो हमने पहले भी बार बार आएगा ये कि हर एक कमेटी में मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द कमिटी। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। स्पीकर ही होगा जो चेयरमैन कमेटी का, कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर होगा। फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स एंड ही इज इनवेरिएबली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। आगे हमने क्या देखा था? और ये इनवेरिएबली जो होगा कहाँ से होगा? रूलिंग पार्टी से होगा। पैक में हमने देखा था कि ही इज फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी एंड हियर इन एस्टीमेट कमेटी ही इज ओनली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी से कंपलसरी होना पड़ेगा। 25 मेंबर्स थे, 30 मेंबर्स बढ़ाया गया। हर एक साल लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा नहीं होता है। एंड मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी। मिनिस्टर तो मेंबर नहीं हो सकता है। द फंक्शन ऑफ द कमिटी इज टू एग्जामिन द एस्टीमेट। अब क्या करेगा ये फंक्शन? क्या है कि एस्टीमेट, जो भी एस्टीमेट है इंक्लूडेड इन द बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। हाँ, ये कमिटी देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं कर रही है। पैक जो था वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर रही थी। आफ्टर द एक्सपेंडिचर हैज बीन डन देन द रोल ऑफ पैक कम्स इन। फंक्शन ऑफ कमिटी इज टू एग्जामिन द एस्टीमेट, जो भी एस्टीमेट बनता है बजट का। बजट का डिस्कशन हमने कर रखा है, आप पुराना देख सकते हैं पूरा जा करके बजट, क्योंकि उतना अभी नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। इंक्लूडेड इन द बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमी, कि एस्टीमेट जो हर एक डिपार्टमेंट है एक एस्टीमेट बनाएगी कि दीज आर द एक्सपेंडिचर दैट वी हैव टू डू इन दिस फाइनेंशियल ईयर। हर एक डिपार्टमेंट एस्टीमेट देती है इन पब्लिक एक्सपेंस हैज इट इज। तो इसको क्या होता है कि एस्टीमेट इंक्लूडेड, तो ये सजेस्ट करेगी इकोनॉमीज कि जो भी आप बजट दिए हैं जो डिपार्टमेंट की, उसमें और कम कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए कि होम मिनिस्ट्री ने बजट दिया कि उसको एक साल के लिए 1000 करोड़ चाहिए, तो एस्टीमेट कमेटी के पास वो जाएगा एंड देन इट विल सजेस्ट इकोनॉमीज कि आप जो यहाँ खर्चा कर रहे हैं इट कैन बी रिड्यूस टू 900 करोड़ ऑल्सो। तो दैट इज द वर्क ऑफ एस्टीमेट कमेटी। अब हैंस इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमिटी, इसीलिए उसका डिस्क्रिप्शन क्या है? इसका डिस्क्रिप्शन है कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी किसको बोलते हैं? एंड इट इज एस्टीमेट कमेटी को कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी बोलते हैं। MCQs इसके बाद हम करेंगे एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इफ यू लिसन दिस लेक्चर वेरी मच प्रॉपर्ली यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, नो मैटर फ्रॉम विच सीरीज इट इज। आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इन मोर डिटेल। ये तो हमने देख लिया कि बजट में इकोनॉमीज देता है, कि बजट एस्टीमेट बताता है, ये एस्टीमेट को में इकोनॉमी देता है कि कोई भी बजट आया तो उसमें इकोनॉमीज बताएगा ये कि कैसे उसको इकोनॉमिक बनाए। और इन मोर डिटेल्स और इन डिटेल में देखते हैं द फंक्शन ऑफ द कमिटी क्या क्या है। टू रिपोर्ट करना व्हाट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशंस एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरटेकिंग द एस्टीमेट्स कैन बी इफेक्टेड। ये भी बताती है कि क्या और इम्प्रूवमेंट किया जाए उस ऑर्गेनाइजेशंस में, इफिशिएंसी कैसे लाया जाए, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कंसिस्टेंटली कैसे हो एस्टीमेट से रिलेटेड। तो वही है, इफिशिएंसी कैसे लाएगा। टू सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसी भी बताएगी इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट इफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन, और ज़्यादा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए सजेस्ट करेगी। यहाँ पे भी क्या है, इट्स नॉट बाइंडिंग, नथिंग इज बाइंडिंग, कमिटी के नॉट रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग, इट इज जस्ट एडवाइजरी इन नेचर। टू सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसी इन सजेस्ट करेगी इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन। टू एग्जामिन वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट्स ऑफ द पॉलिसी इम्प्लाइड इन द एस्टीमेट, कि वेल लेड आउट कि पॉलिसी के हिसाब से ही जो, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है,
तो जो भी मनी ले आउट किया गया है वो लिमिट ऑफ द पॉलिसी है, कि कोई पॉलिसी आप बनाए और उस पॉलिसी में मैक्सिमम लिमिट जो खर्चा हो सकता था दैट वाज ओनली लाइक 100 करोड़ और समथिंग, एंड यू आर जस्ट लेइंग आउट 200 करोड़ फॉर दैट, तो वहाँ इकोनॉमीज नहीं आई ना। तो वो भी ये देखेगी कि मनी जो है प्रॉपरली पॉलिसी के हिसाब से ही दिया गया हो, टू सजेस्ट द फॉर्म इन विच द एस्टिमेट्स आर टू बी प्रेजेंटेड। ये भी बताती है कि एस्टिमेट से रिलेटेड है, इसीलिए नाम है इसका एस्टिमेट कमेटी, कि बजट का एस्टिमेट से रिलेटेड है, कैसे एफिशिएंसी लाना है, कैसे किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, कितना कम कर सकते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे एफिशिएंसी लाना है। तो दीज आर ऑल द प्रॉपर फंक्शंस ऑफ द कमिटी। द कमिटी शैल नोट एक्सरसाइज इस फंक्शन इन रिलेशन टू सच पब्लिक अंडरटेकिंग। अब देखिए कि पैक के बारे में भी पढ़ा था कि अब ये देखते हैं, द कमिटी शैल नोट एक्सरसाइज इट्स फंक्शन इन रिलेशन टू सच पब्लिक अंडरटेकिंग एज आर अलॉकेटेड टू द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऐसा चीज़ है या ऐसा काम है जो पब्लिक अंडरटेकिंग को दिया गया हो, तो ये वो उस चीज़ को नहीं करेगा। सिमिलर इन केस ऑफ पैक ऑल्सो वी स्टडीड कि इफ़ सर्टन वर्क्स हैज़ बीन अलॉकेटेड टू द पब्लिक अंडरटेकिंग से दिया गया हो, तो पैक वॉन्ट इंटरवीन। वाई इज दैट सो? इट विल लीड टू द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। और 3 कमेटी हमने पढ़ा था ना, 3 कमेटी है फाइनेंस में, पैक पढ़ लिया, एस्टिमेट कमेटी पढ़ लिया, और ये तीसरा है पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जो पीएसयू की फाइनेंसेस को देखती है। द कमेटी अब है कि एस्टिमेट कमेटी में आगे क्या दिया हुआ, हम एस्टिमेट कमेटी ही डिस्कस कर रहे हैं। ये आगे दिया हुआ है, द कमेटी में कंटिन्यू द एग्जामिनेशन ऑफ द एस्टिमेट फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर एंड रिपोर्ट टू द हाउस एज इट्स एग्जामिनेशन प्रोसीड्स। तो ये हम देखा जा सकता है कि पैक से ज़्यादा कारगर है ये एस्टिमेट कमेटी, क्योंकि ये जब कंटिन्यूसली एग्जामिन करेगा द एस्टिमेट फ्रॉम टाइम टू टाइम ये कंटिन्यूसली एग्जामिन करेगा थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। ये बताएगा कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च करना है, नहीं करना है। एंड इट शुड नोट विद द इनकमेंट ऑन द कमिटी टू एग्जामिन द एंटायर एस्टिमेट ऑफ 1 ईयर। ये भी चीज़ है, ये भी ध्यान रखना है हमें कि ये पूरा एस्टिमेट नहीं बताएगा कि कितना होना चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट को एस्टिमेट बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर ये भी पावर एस्टिमेट कमेटी को दे दिया जाए कि जितना भी एस्टिमेट बनेगा एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का प्रॉपर 1 साल में क्या खर्चा है, तो इस पे वो नहीं है। डिमांड फॉर ग्रांट में बी फाइनली वोटेड डिस्पाइट द फैक्ट दैट कमिटी हैज़ मेड नो रिपोर्ट। अब देख लीजिए फिर इनफेक्टिवनेस ऑफ दिस कमिटी कहाँ आ गया, वेयर दिस पार्टिकुलर कमिटी इज इनफेक्टिव। ठीक है, काम तो बहुत अच्छा है, इट विल ऑल्सो सबमिट इज रिपोर्ट, but that will be only in recommendatory nature. That is the issue in our parliamentary system कि ये committee का recommendations are just not binding. तो वही है, the demand for grant may be finally voted despite the fact that the committee has no report. तो फिर भी demand for grant consider किया जाएगा। अब however the effectiveness of the role of the committee is limited by the following. हमने देख लिया, पूरा फंक्शंस देख लिया कि जितने भी बजट के एस्टिमेट वगैरह का को इकोनॉमीज ऑफ करना रहता है, कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी भी बोलते हैं इसको। और अगला चीज़ क्या है, इट एग्जामिन्स द बजट। अगला है कि और फंक्शंस में क्या क्या है इसका, ये इफेक्टिवनेस कहाँ लिमिट होता है। इट एग्जामिन्स द बजट एस्टिमेट ओनली आफ्टर दे हैव बीन वोटेड बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बिफोर इट। अब जब वोटिंग हो गई है तो फिर नथिंग कैन बी डन ना, यू कैन नॉट जस्ट, हमने देखा कि अप्रोप्रिएशन बिल होता है, यू कैन नॉट चेंज अप्रोप्रिएशन बिल, दैट ग्रांट विल बी मेड, तो उसके बाद होता है, इसका भी पोस्टमार्टम टाइप रिपोर्ट है। इट कैन नॉट क्वेश्चन ऑन द पॉलिसी लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट। अब जो पॉलिसीज है, पॉलिसी कैन नॉट क्वेश्चन द पॉलिसी लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट, जो भी पॉलिसी ले डाउन की गई है पार्लियामेंट को, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता है ये। इट्स रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग इन द ऑन द मिनिस्टर्स, दैट इज द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक। It examines every year only certain selected ministries and department. ये भी है, not all the departments are scrutinized by this estimate committee, only certain elected ministries are determined. Thus by rotation it would cover all of them over a number of years. करेगी सबको मगर एक साल में कुछ को ही करती है, और thus by rotation it would cover all of them over a number of years. तो ठीक है ना, तो इसीलिए करप्शन अगर किसी और जिसको ये कर रही है, सेलेक्टेड मिनिस्ट्री को कर रही है, तो बाकी में करप्शन तो हो सकता है। इट लैक्स द ये एक्सपर्ट असिस्टेंस ऑफ द कैग। अभी कैग इसको मदद नहीं करता है, कैग सिर्फ पैक को मदद करता है। एक्सपर्ट असिस्टेंस ऑफ द कैग विच इज अवेलेबल टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी। यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि पैक इज बीइंग helped by the CAG. It act as a friend of CAG, but this committee has no support of the CAG. Its work in nature of postmortem. इसका भी आगे पॉइंट रिपीटेटिव है कि आफ्टर कोई काम हो जाने के बाद या वोट हो जाने के बाद ही ये आती है। अब तीसरा हम लोग डिसाइड करते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, फिनांस कमेटी में है कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग।
The committee was constituted in 1964 on the recommendation of the Krishna Menon Committee. कृष्ण मेनन कमेटी ने इसको डिटरमाइन किया था कि कौन सा था। ओरिजिनली इट हैज 15 मेंबर्स, 15 मेंबर हैं। हमने सभी मेंबर्स का देख लिया, 22 मेंबर पैक में थे, 30 मेंबर था एस्टिमेट में, और इसमें है 15 मेंबर, 10 फ्रॉम लोकसभा एंड 5 फ्रॉम राज्यसभा। हाउएवर इन 1974 द मेंबरशिप वाज रेज्ड टू 22। तो अभी मेंबरशिप इसका कितना है? 22 है, यानी कि सेम एज दैट ऑफ द पैक परमानेंट ये पब्लिक अकाउंट कमेटी मेंबर है। द मेंबर ऑफ द कमेटी आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर फ्रॉम अमॉन्ग इट्स ओन मेंबर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेम प्रिंसिपल हर एक कमेटी में बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दस ऑल द पार्टीज को ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिलता है। टर्म ऑफ द ऑफिस इसका भी 1 साल का है। मिनिस्टर को नहीं अपॉइंट कर सकते हैं कमेटी में। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ये हुआ है कि द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमॉन्ग, ये स्पीकर ही अपॉइंट करेगा चेयरमैन को फ्रॉम अमॉन्ग इट्स मेंबर्स व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम द लोकसभा ओनली। अब देख लिया आपने, इसमें भी क्या होगा? खाली लोकसभा से ही होगा। मेंबर जो हैं इसके मेंबर्स नहीं, चेयरमैन विल बी ओनली फ्रॉम लोकसभा। मेंबर्स तो दोनों हाउस के होंगे। मेंबर्स खाली एस्टिमेट कमेटी में हमने यहाँ देखा कि खाली एस्टिमेट कमेटी जो होता है उसमें मेंबर्स कहाँ से होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं, दे आर फ्रॉम द लोकसभा। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी में हमने देखा था यहाँ कि ऑल द 30 मेंबर्स ऑफ लोकसभा से ही होते हैं। मगर इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे स्पीकर जो होगा, इसका चेयरमैन जो होगा, ये चेयरमैन जो होगा कहाँ से होगा? फ्रॉम द लोकसभा ओनली। दस द मेंबर ऑफ द कमिटी हु आर ड्रॉन फ्रॉम राज्यसभा कैन नॉट बी अपॉइंटेड। तो क्या होगा? जो मेंबर्स आर फ्रॉम बोथ द हाउसेस, चेयरमैन इज ओनली फ्रॉम लोकसभा। Thus, the member of the committee who are from the Rajya Sabha cannot be appointed by the chairman. Functions क्या हैं कमेटी के? The functions of the committee क्या हैं? The functions of the committee are to examine the report of the public under जितने भी PSUs हैं, whether it's a bank or it's a ONGC, SailWell and all, जितने भी उसके reports and accounts को ये क्या करेगी? स्क्रूटनी करेगी। To examine the report of the CAG on public undertaking। अब यही इसी रिपोर्ट के बारे में आगे हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी डिस्कशन या कोई भी स्क्रूटनी या एग्जामिनेशन ये पार्टिकुलर कमिटी कर रही है, दैट इज कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, दैट वॉन्ट बी डन बाय द एस्टिमेट कमिटी एंड पैक। इसी चीज़ के बारे में हमने आगे डिस्कस कर रहे थे कि ये रिपोर्ट्स ऑफ कैग ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसी चीज़ के बारे में दे रहे थे। टू एग्जामिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग वेदर द अफेयर्स ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग आर बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। तो इस काम में पैक और इसका सिमिलर रोल है, बट पैक का काम क्या है? सभी जगह है, और ये सिर्फ पब्लिक अंडरटेकिंग्स में देखती है कि वेदर जो मनी एलोकेटेड हुआ है पीएसयू को, कि आर दे फॉलोइंग बिजनेस प्रिंसिपल्स। क्योंकि बिजनेस प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो किसी में अगर बहुत मिनिमाइज किया जा सकता है आपके एक्सपेंडिचर को। एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस, दैट इज ऑल फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय पीएसयू। तीसरा है टू एक्सरसाइज सच अदर फंक्शंस वेस्टेड इन द पब्लिक अकाउंट कमिटी एंड एस्टिमेट कमिटी in relation to the public undertakings which are allocated to the speaker from time to time। अब ये फंक्शंस जो एलोकेट किया जाते हैं पैक को या एस्टिमेट कमेटी को पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड, ये भी एक्सरसाइज कर सकती है। ये वही बोला गया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी और इसको जो दिया जाता है रिलेशन टू पब्लिक विच आर लोकेटेड विद बाय द स्पीकर, अगर इसको देगा तो ये कर सकेगा। तो पीएसयू से रिलेटेड जितना भी अकाउंटिंग मिनिमाइजेशन एंड ऑल दैट विल बी डन बाय दिस कमेटी। अब क्या है इशू, क्या है देखिए यहाँ, द कमिटी इज नॉट टू एग्जामिन एंड इन्वेस्टिगेट एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये सब एग्जामिन नहीं करेगा। पहला है मैटर ऑफ मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस और कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग। मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है उस पर, उस मैटर्स पे ये नहीं एग्जामिन करेगा। दूसरा है मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में तो किसी को नहीं, कोई नहीं कर सकता है। एस्टिमेट कमेटी थोड़ा बहुत करने का कोशिश करती है। पैक ऑल्सो कैनॉट मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा है मैटर फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ विच मशीनरी इज एस्टैब्लिश्ड बाय ए स्पेशल स्टैट्यूट। कंसिडरेशन मैटर, अब किसी लिए अगर कोई और मशीनरी हो गया अंडर विच अ पार्टिकुलर पब्लिक अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश्ड। अब देखिए उस पीएसयू का मैटर नहीं लेगा जिसके लिए एक स्पेशल बॉडी बनाई गई हो। जाहिर सा बात है फिर डुप्लीकेशन ऑफ इफर्ट हो जाएगा। अगर एक पार्टिकुलर बॉडी हैज ऑलरेडी बीन मेड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ फंड्स ऑफ दैट पार्टिकुलर पीएसयू, so why will this committee also intervene in that? That will only lead to the duplication and double work। तो ये देख लिए कि क्या नहीं करेगा, डे टू डे फंक्शनिंग मैटर ऑफ मेजर पब्लिक मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी। तीसरा है फर्दर द इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल ऑफ द कमिटी इज लिमिटेड। अब ये ड्रॉबैक दिया है, हमने देख लिया कि पीएसयू का सारा कुछ ये रेगुलेट करता है और एग्जामिन करता है, बट व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस कमिटी ऑल्सो। ये कमिटी, इस कमिटी जो पब्लिक अंडरटेकिंग है,
इसका क्या है ड्रॉबैक? टू इट कैन नॉट टेक अप एग्जामिनेशन ऑफ मोर देन 10 to 12 पब्लिक अंडरटेकिंग इन अ ईयर। अब देखेंगे कि हमारे पास कितने, बहुत सारे हैं PSUs। अभी तो प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट कर रही है, मगर फिर भी वी हैव अ लॉट ऑफ PSUs। तो 10 से 12 से ज़्यादा एग्जामिनेशन नहीं कर सकेगी ये इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक है। करप्शन कैन टेक प्लेस इन अनदर डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो ये एस्टिमेट कमेटी और इस कमेटी का एक नॉर्मल ड्रॉबैक है दोनों का। एस्टिमेट कमेटी भी सभी का नहीं कर सकती है, ओनली अ फ्यू मिनिस्ट्रीज का वो बजट देख सकेगी। दूसरा है इट वर्क इन नेचर ऑफ द पोस्टमार्टम। तीनों कमेटी का ये ड्रॉबैक था कि क्या था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ही करेगी। इट डज कि आफ्टर द एक्सपेंडिचर हैज बीन डन बाय दैट पार्टिकुलर PSU देन ओनली इट विल कम इनटू एक्शन। इट डज नॉट लुक इनटू टेक्निकल मैटर्स एज मेंबर्स आर नॉट टेक्निकल एक्सपर्ट्स। ये भी इशू हमने देखा कि इट वाज द इशू वाज कॉमन बिकॉज इट डज नॉट लुक इनटू टेक्निकल मैटर्स पे। तो दिखाने का टेक्निकल मैटर्स एक्सपर्टीज ही नहीं है ना, रिकमेंडेशंस एडवाइजरी होगा, कॉमन नोट बाइंडिंग ऑन द मिनिस्ट्री, सभी इशू है। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कैरी ऑन दिस पार्टिकुलर पार्लियामेंट्री कमेटी। थैंक यू।